हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। ये हमारा तीसरा सेशन है ऑन द कीवर्ड्स। दोस्तों, कीवर्ड्स आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू योर लर्निंग, विद रिस्पेक्ट टू varieties of the entrance examination. In the past 2 to 3 years, when I saw all these important examinations, when I appeared on my own, I realized that the students must be facing a lot of trouble in terms of interpreting important words. ठीक है, because all these words are used in the RC. They are basically available in varieties of the forms, and students may have a lot of confusion about these words. Okay, so we have developed a method of learning vocabulary through keywords. Okay, so here we have these words called climactic, anticlimactic, closure, finale, fruition, fallout, repercussion. All this means whatever is the consequences, ठीक है, whatever the event has happened, what are the consequences, what is the final result, ये सब वर्ड उसी के साथ कनेक्टेड है। ये सुनो दोस्तों, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा पर पक्का फायदा होगा। ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं कि भैया आप अपने आप को अगेन से खुश अगेन से फील करोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एंटायर सेशन। जब आपने ये सेशन कंप्लीट कर दिया, बिलीव मी, आप बाकी लोगों से एटलीस्ट अगेन से 40 to 50 या 60 या 100 नए वर्ड्स में आगे होंगे, ये पक्का है। ठीक है, बड़े मजेदार से वर्ड्स है और ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे नहीं अलग अलग जगहों पे। मतलब ऑब्वियसली वर्ड्स मिलेंगे पर इस तरीके से नहीं मिलेंगे जहां पे आप उसको समझ पाए एक साथ। ओके, चलिए देखते हैं। सो वी वर्ड क्लाइमैक्टिक। दोस्तों ध्यान से देखना, ये क्लाइमैटिक नहीं है। The difference is only between C and no C. Okay, climatic is connected to climate. Okay, environment, climatic change. Okay, ठीक है, वो जो जलवायु परिवर्तन के बारे में बात होती है वो है climatic. Okay, here we are talking about climactic, anticlimactic. So दोस्तों, climactic refers to climax. किसको रेफर करता है? Climax. Okay, ठीक है, the audience was turned in the movie's climactic scene. Obviously जलवायु परिवर्तन के बारे में बात नहीं है। अगर आप इसको जलवायु परिवर्तन के नजरिए से देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा क्लाइमेटिक के बारे में, क्लाइमेटिक के बारे में नहीं। क्लाइमैक्स के साथ कनेक्टेड है क्लाइमैटिक। Yes or no? With the arrival of this new web series, we are always stunned at the end of any episode कि भैया अगले एपिसोड में क्या होगा। Yes or no? So when the episode ends, the climactic scene is stunning and we will wait कि भैया अगले एपिसोड में क्या होगा। So we will stop. मतलब what we do is we continue our journey. We don't stop. We continue with our journey. ठीक है, एक साथ 4 या 5 एपिसोड तो देख ही लेते हैं। Yes or no? भैया पढ़ाई के लिए आप ये सब ध्यान रखते हो तो ऐसा मत करना। एंटीक्लाइमैक्टिक refers to the ending which disappoints after the initial hype. Okay, so when you can say your friend gives you a big size of gift, okay, and then when you open it and you find only one small piece in it, it is anticlimactic. She shared my sentiments that it was one of the more anticlimactic milestones of my career. So basically एंटीक्लाइमैक्टिक का मतलब हो गया कि शुरुआत में बहुत बड़ा हाइप हुआ और बाद में डिसअपॉइंटमेंट हो गया। ये सुनो, क्लोजर करना, दैट इज एंड। ठीक है, आपने सुना होगा हार्वेस्ट स्पेक्टर was the best closure of this, you can say, of the city. Yes or no? मतलब आप अगर अच्छा क्लोजिंग कर पाते हो तो अच्छी बात है। What is the meaning of act of closing? Act of closing का मतलब होता है किसी के साथ बात करके फाइनली चीज के ऊपर एक से कंक्लूजन लेके आना कि भैया हम ये बात फाइनल कर चुके हैं। Yes or no? Also means that sense of resolution or a completion or reaching to a conclusion. This is very important. The parents finally achieved some closure when the killer of the child was hanged. So then they realized कि चलो भैया अब दुनिया खत्म हो गई, just like what निर्भया केस के अंदर भारत में हुआ था। Yes or no? Finale.
I'm sure all of you are aware about finale. This is not a big deal because it is basically used in many of this, we can say, reality shows. ठीक है, इंडियन आइडल फिनाले है ना वैसा. सो द लास्ट पार्ट ऑफ अ म्यूजिकल पीस और अ शो दैट इज कॉल्ड फिनाले. एंड फ्रूशन, ठीक है, समथिंग केम टू अ फ्रूशन. That means something came to a conclusion in terms of a result. Okay, fulfillment, attainment of a desired result. दोस्तों, fruition is something which is materialized in certain, you can say, output. So for example, when you join ProTalent, your dreams will come to a fruition. That means आपके सपनों को reality में convert होगा. ठीक है, you will attain reality, fulfillment, attainment of desired result. This is what fruition means. Okay, the education policy of the government reached the fruition much before the deadline. ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का रिजल्ट उसके डेडलाइन से पहले ही आने लगा बिकॉज ऑफ अनटायरिंग एफर्ट्स ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर ऑफ द फील्ड. उन लोगों ने बहुत मेहनत करी और इसकी वजह से सरकार ने जो समय सोचा था उसके पहले ही उसका रिजल्ट आ गया. ये सुनो, सो फ्रूशन इज कमिंग टू अ डिजायर्ड रिजल्ट. फॉल आउट होना, फॉल आउट दोस्तों, फॉल आउट कोई पर्टिकुलर एक्शन का एडवर्स रिजल्ट. ओके, गलत कोई काम होना, गलत रिजल्ट आना उसका, ये सुनो. सो द फॉल आउट, ओके, ऐसा बोल सकते हो. फ्रूशन पॉजिटिव है, वहां पे कोई भी आपने मेहनत करी, उसका रिजल्ट, उसका अटेनमेंट हुआ. वेल फॉल आउट इज नॉट. ओके, इमोशनल फॉल आउट फ्रॉम द डाइवोर्स वाज टफ फॉर हिम टू हैंडल. इस तरीके से बोल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड इमोशनल फॉल आउट विच इज एडवर्स रिजल्ट. ओके, कुछ मूवीज के अंदर होता है कि भैया मिशन इम्पॉसिबल, द फॉल आउट, है ना, विच मीन्स द एडवर्स रिजल्ट ऑफ द एक्शन. फॉल आउट मीन्स falling on the ground of the radioactive particles that were ejected into the atmosphere because of a nuclear explosion. आप इस तरीके से भी उसको यूज कर सकते हो. That is called fallout. समझ आया? Very good दोस्तों. So repercussion. What is the meaning of repercussion? The consequences. But कैसे consequences? Unintended consequences. Okay. So when you have a negative consequences, you say the repercussions are this. Okay. So when you are, you can say, getting infected through COVID-19, the repercussions are, you can say, multiple. It may impact your lungs, it may impact overall, you can say, body. Yes or no? They are called repercussions. The repercussions of 9/11 attacks are still felt today in the world politics. Iraq, Afghanistan, ये सब आज भी दिख रहा है ना. ये सब पूरी शुरुआत कहाँ से हुई? 9/11 से हुई. ये सुनो, अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस, उसके सिनोनिम्स क्या होंगे? आफ्टरमैथ, बाई प्रोडक्ट, ब्लो बैक, बैकवॉश, रेमिफिकेशन, रिवर्बरेशन. मजेदार सा वर्ड है, रिवर्बरेशन. ठीक है, रेमिफिकेशन होना मतलब कोई चीज का, यू कैन से, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव चेंज. दैट इज कॉल्ड रेमिफिकेशन. Yes or no? ठीक है, after the, you can say, debacle against Sri Lanka in T20, you can say, matches, it is the ramification is expected from अपने राहुल द्रविड़. Yes or no? चलिए ग्रेट दोस्तों, आई होप इट इज वेरी क्लियर. चलिए वेरी गुड. तो क्या क्या वर्ड देखे हमने? क्लाइमैक्टिक refers to climax, reaching to an end. एंटी क्लाइमैक्टिक विच मीन्स जो एंड में जाकर एक मजेदार सा रिजल्ट आता है, वैसा नहीं. ठीक है, शुरुआत में हाइप हुई पर बाद में इतना कोई बेनिफिट हुआ नहीं. क्लोजर, कोई चीज का खत्म कर देना. ठीक है, तो भैया वैसा ही वर्ड है फिनाले. फिनाले का क्या मतलब हो गया? कोई म्यूजिकल इवेंट का, कोई एक बड़ी ऐसी आर्ट का एक फाइनल इवेंट होना, दैट इज कॉल्ड फिनाले. फ्रूशन और फॉल आउट. फ्रूशन कोई पॉजिटिव रिजल्ट आना, यू कैन से फॉल आउट नेगेटिव कंसिक्वेंस होना, नेगेटिव आउटपुट होना. रिपरकशन कोई नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होना. ये सुनो, फॉल आउट इज द रिजल्ट. फॉल आउट इज द रिजल्ट. ओके, while repercussion are consequences. ओके, सो ये बिल्कुल समझ में आ गया. एक साथ ये सब वर्ड अगर आएंगे एग्जाम में, आई एम श्योर यू विल बी इन अ पोजिशन टू डू दिस. दोस्तों, ये आपको मदद कहाँ कहाँ पे होगा? आप अगर फिल इन द ब्लैंक्स देना चाहते हो, ठीक है, तो ये रहे आपके सामने सब सिमिलर वर्ड्स. ये सुनो, कौन सी जगह पे यूज होगा ये आपके सामने क्लियर है. आपको ये समझ में आया? नंबर 1, अगर आपको आरसी में यूज हुआ, ये सुनो, सो व्हेन दे यूज्ड वर्ड कॉल्ड फॉल आउट,
you know how to interpret that word. You don't interpret it as a kind of result of something. It is negative stuff. है ना, unintended consequences is what the fallout is. Okay, great. अगले वर्ड है आपके सामने स्कॉच, क्वेल, स्नफ. कुछ लोग स्कॉच देखकर गलत विचार आ रहा है मन में ना भैया, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं. ये सुनो, ध्यान रखना, क्वेल एंड स्नफ. ओके, देखते एक एक करके. स्कॉच करना, दैट मीन्स to conclusively put an end to something. Okay, for example, the party spokesperson scotched the rumors of CM resigning. So they put an end conclusively कि भैया ये पक्का जाएंगे, उनकी जगह पे नए भाई साहब आएंगे. ये पार्टी स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया, या ये नहीं जाएंगे, मतलब रियलिटी में ये सब तो चले गए थे. ये सुनो, इनकी जगह पे कौन नए भाई साहब आए बताइए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो कंक्लूसिवली put an end to something. Okay, so when you are scotching something, okay, you scotch something, you put an end to that. Okay, similarly, quell, to conclusively put an end to something by use of force. Okay, so when Afghanistan forces are, you can say, taking care of their own country, their own region, they quelled the Taliban, ऐसा बोल सकते हैं. The dictator quelled the rebellion by firing at the protester in the town square. ये सुनो, ये शायद बात हो सकती है चाइना की, या टूनिशिया की, या इजिप्ट की, या सीरिया की, ठीक है, या म्यांमार की. ऐसी बातें हो सकती है ना, क्योंकि इन सब जगह पे परेशानियां चल रही है. ये सुनो, सो क्वेल करना मतलब किसी को बाय फोर्स खत्म कर देना, उसके सामने वो सामने कुछ बोल ही नहीं पाए वैसा काम कर देना, दैट इज कॉल्ड क्वेल. ठीक है. स्नफ आउट करना, स्नफ का मतलब होता है एक्सटिंग्विश कर देना कोई चीज को, दैट इज कोई आग, कोई फ्लेम, कोई चिंगारी को खत्म कर देना. ये सुनो, सो दैट इज टू स्टब आउट, मतलब वो होते हैं ना, मतलब सिगरेट को नीचे फेंक के उसको मतलब पैर से मसल देना वैसा. द एयर कमिंग फ्रॉम सीलिंग फैन स्नफ्ड आउट द कैंडल्स ऑन द बर्थडे केक. ये सुनो, ऊपर फैन चल रहा था, यहाँ पे आपने बर्थडे केक के ऊपर कैंडल लगा के रखी थी, सब बुझ गई, दैट इज कॉल्ड स्नफ आउट. ये सुनो, तो भैया आपको ये समझ में आ गया, स्कॉच करना, यू कैन से कंक्लूसिवली कोई चीज के ऊपर एंड करना, पॉसिबली बाय गिविंग मोर क्लैरिटी, ठीक है, और बाय ऑथोरिटेटिवली टेलिंग समवन कि भैया ये नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड स्कॉच. ओके. क्वेल बाय फिजिकल फोर्स को यूज करते हुए, एंड स्नफ, ठीक है, स्नफ मतलब जो चीज की कोई चिंगारी है, छोटी कोई चिंगारी है, उसको खत्म कर देना. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. नेक्स्ट वर्ड्स आर रिलेटेड टू आवर एजुकेशन. ठीक है. मैट्रिकुलेशन, कॉन्वोकेशन, एल्यूमिना, एल्यूमिनस, एल्यूमिनाई, अल्मा मैटर, वार्सिटी. बहुत इजी वर्ड्स है, ये सब पक्का पता होगा. मैट्रिकुलेशन, अ प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट एट यूनिवर्सिटी. ये सुनो, सो व्हेन यू क्लियर your 12th exam and you enter into university, you have matriculated and now you are entering into the university. Once you pass out from the university, you get a degree, that is called convocation ceremony. आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का भी convocation ceremony, यूजी मतलब केजी और you can say जूनियर केजी और सीनियर केजी में भी convocation होता है. एल्यूमिनस, ठीक है, उसका प्लूरल फॉर्म है एल्यूमिनाई. एल्यूमिनस इज अ मेल ग्रेजुएट. क्या बात करते हो सर, ऐसा तो हमें पता नहीं था. भैया सुन लो, है ना, इट्स अ मेल ग्रेजुएट, वाइल एल्यूमिना, ठीक है, इज अ फीमेल ग्रेजुएट. ठीक है. एल्यूमिनाई इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ इट. इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ इट. ओके, याद रहेगा सबको. वेरी गुड. चलिए, अल्मा मैटर, दैट्स योर स्कूल, दैट्स योर यूनिवर्सिटी, दैट्स योर, यू कैन से प्लेस. अल्मा मैटर, योर मदर, ठीक है, जहां से आप पढ़ाई करके आए हो. दैट इज हाउ द आइडिया इज. ही डोनेटेड $20 million टू हिज अल्मा मैटर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऐसा बोल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अल्मा मैटर. स्कूल और कॉलेज जहां से आप ग्रेजुएट हुए हो, जहां से आप पढ़े हो, दैट्स योर, यू कैन से अल्मा मैटर, व्हिच इज आल्सो नोन एज जनरस मदर. And varsity is meaning, that is called university. ठीक है. It also means university. ओके. सो ये आपको कंफ्यूजन ना हो, इसकी वजह से मैंने बता दिया. ठीक है, ताकि इजी कहानी आपके लिए बन जाए. बिलाई, बिट्रे, बिग्रज, बिफॉल, बेयर अपॉन, ब्रिंग टू बेयर. ओके. तो मजेदार से वर्ड है सब, आपने सुना होगा ये सब वर्ड कहीं ना कहीं. बिलाई करना, बिट्रे करना, बिट्रे तो बहुत ही बार सुना होगा. ये सुनो, अगर कोई आपको बिट्रे करता है तो बहुत बुरा लगता है. ये सुनो, बिलाई,
कॉन्ट्राडिक्ट करना, झूठ बोलना। हिज शेकिंग हैंड्स बिलाइड हिज काम वॉइस, एकदम शांति से बोलता था वो आदमी, ठीक है, एकदम काम था, पर जब उसके हैंड्स को देखा तो वो कांप रहे थे। यस और नो, सो विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट। यस और नो, सिमिलरली यू हैव अ बिट्रे। ये जो बिट्रे है नहीं कि उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। एक होता है धोखा देना, ही बिट्रेड यू। अनदर मीनिंग इज टू रिवील। द लाउड ग्राउलिंग ऑफ हिज स्टमक बिट्रेड हिज हंगर, उसके पेट में भूख थी, यस और नो, ठीक है, लाउड ग्राउलिंग ऑफ हिज स्टमक रिवील्ड कि उसको भूख लग रही है, यस और नो, ठीक है। होता है ना वो जो जब अगेन से किसी के घर खाने के लिए जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट से, बहुत ही ज़्यादा प्यार से हमें खिलाया जाता है, ये सुनो। तो जनरली लोगों को ट्रेन करा जाता है कि भैया देखो, आपको एक बार खाना देंगे, सामने वाला बोलेगा ना, ठीक है, दूसरी बार बोलेगा, है ना, जोर से बोलेगा ना, ठीक है, तीसरी बार चिल्ला के बोलेगा अब नहीं, ये सुनो, सब विच मीन्स अब नहीं देने का, पर तब तक तो देते रहने का, है ना। ये भारतीय संस्कृति का पार्ट है, पढ़े नहीं वे, ठीक है। सो बिट्रे का एक मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है, और दूसरा मतलब होता है रिवील करना, है ना, दैट इज कॉल्ड बिट्रे। ओके, बिग्रज टू रिसेंट समवन फॉर देयर गुड फॉर्च्यून, ठीक है, मतलब क्या हुआ उसका ये मतलब होना कि उसको बेनिफिट हुआ बट यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, यू आर रिसेंटिंग ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, गौरव गॉट प्रमोशन एंड यू बिग्रज, यस और नो, ठीक है, ओके, शी बिग्रज श्वेता फॉर हर वेल्थ, ठीक है, बराबर एक तरीके से अदेखाई करना, ठीक है, किसी के बारे में आपके लिए उसके बारे में उसको बेनिफिट हुआ तो आपको अच्छा नहीं लगा। ऐसा होता है ना कि अगर अपना दोस्त अपने से बेहतर मार्क लाता है, ठीक है, तो दुख होता है, ये सुनो। तो ये वही बिग्रज की बात है, रिसेंट समवन फॉर देयर गुड फॉर्च्यून, दैट इज हाउ द बिग्रज इज। बिफॉल, टू फॉल अपॉन समवन, ट्रेजेडी बिफॉल हिज आर्ट, ट्रेजेडी उसके ऊपर गिरी। क्या बात करते हो, ऐसा ना ना ना, ऐसा नहीं। दैट मीन्स टू फॉल अपॉन समवन, उसके ऊपर वो चीज़ का एक से गलत चीज़ उसके साथ आना, उसके डेस्टिनी में वो गलत चीज़ आना, ये सुनो। बेयर अपॉन, टू हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन द 2015 जजमेंट बेयर्स अपॉन द केस एज अ फैक्ट्स आर आइडेंटिकल। 2015 का जो जजमेंट हुआ वो अभी वाले जजमेंट के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस हुआ, that is how they bear upon. While bring to bear, that is to apply. There is a finite amount of government resources we can bring to bear, that means we can apply, we can't apply so much, ठीक है, that is how bring to bear, ठीक है। so दोस्तों we talked about this group of words: बिलाई, झूठ बोलना, बिट्रे, रिवील करना, बिग्रज, रिसेंटमेंट होना, पर फॉर वॉट, किसी के खुश में, बिफॉल, उसके ऊपर गिरना, वो परेशानी की बातें होना उसके साथ, बेयर अपॉन, ठीक है, उसको उसके साथ उसको एडजस्ट करना, ब्रिंग टू बेयर, हम उतना ही सामान निकाल सकते हैं, उतने ही रिसोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं, ये सुनो, उतने ही रिसोर्सेस हम अप्लाई कर सकते हैं। वापस समझते हैं, बिलाई करना, ठीक है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट करना, झूठ बोलना, ये सुनो, कॉन्ट्राडिक्ट करना, झूठ बोलना, बिट्रे करना, रिवील करना, बिग्रज, रिसेंटमेंट होना, ये सुनो। सो whenever you use this kind of words, I'm sure you will be in a position to understand all these words, they come with a different meaning, बिल्कुल, है ना। सो ये ध्यान रखना, दिस आर दी सिंपल वर्ड। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम फॉर यू। बिलाई, कॉन्ट्राडिक्ट करना, बिट्रे करना, टू रिवील करना। हमने बोला है धोखा देना भी आता है और रिवील करना भी होता है, ये सुनो। द लाउड ग्राउलिंग, है ना, पेट में गड़बड़ हो रही है ना, आवाज आ रही है, सो भैया भूख लगी है, ऐसा फीलिंग होना, ठीक है। बिग्रज करना, किसी के अच्छे के लिए हमें दुख होना, दैट इज कॉल्ड बिग्रज करना, ठीक है। बिफॉल करना, दैट इज फॉल अपॉन समवन, ठीक है, किसी के ऊपर, भैया आपके साथ कुछ अच्छा हो गया तो आपके ऊपर कुछ बेनिफिट हुआ ना, बिफॉल, ये सुनो। बेयर अपॉन, टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग, यू हैव टू बेयर अपॉन दैट। ब्रिंग टू बेयर, टू अप्लाई, ये सुनो, आपके पास उतने ही रिसोर्सेस है, आप उतने ही अप्लाई कर सकते हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है? चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं, एम्पैथी। अब इसके अंदर रूट वर्ड है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग्स। पैथोस के बहुत सारे मतलब होते हैं, प्राइमरी दो मतलब, एक होता है पेन, एक होता है पेन, ठीक है। पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी होती है, पेन आइडेंटिफाई करती है, पैथोलॉजिस्ट होता है, वो भी आइडेंटिफाई करता है कि आपको पेन क्यों हुआ, ये सुनो। सो पैथोस अगर आपके साथ सफिक्स में आया,
सफिक्स समझ में आता है ना, सफिक्स का मतलब होता है आखिरी में आया, yes or no, so that is basically called feelings. Pathos as a prefix, पहले आया तो that means pain. Okay, great. So empathy, sympathy, antipathy, apathy, इस तरीके से वर्ड्स बनेंगे, yes or no. Empathy, ability to feel someone else pain and suffering, yes or no, that is called empathy. ठीक है. Similarly you have a word called sympathy, or pity for someone for their misfortune, yes or no, that is called sympathy. ठीक है कि भाई आपको एक सॉरी की फीलिंग आई, फॉर एग्जाम्पल किसी को काटा चुभा, yes or no, उसको दर्द हुआ, यू हैव अ फीलिंग ऑफ सॉरी कि यार तेरे साथ गलत हो गया, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी. अगर उसको काटा चुभा और दर्द आपको हुआ, दैट इज कॉल्ड यू कैन से एम्पैथी. ओके, एबिलिटी टू फील समवन्स पेन, आपके पास एम्पैथी है, उसका पेन आप समझ सकते हो, ठीक है, आप फील कर सकते हो. ओके, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट have heightened a sense of empathy towards the pain of living being other than humans. बराबर है, किसी डॉग को कुछ लगा तो उनको लगेगा कि भाई उनको ही हो गया, कैट को कुछ लगा, हॉर्स को कुछ लगा, डोंकी को कुछ लगा, भाई उनको ही पेन हो गया. दैट इज एनिमल राइट्स वाले बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सुनो. फिर आता है सिंपैथी. सिंपैथी बोलता है कि भैया वही जैसी फीलिंग है, पर एपैथी मतलब नो फीलिंग्स. ठीक है, एपैथी नो फीलिंग्स. जैसे बहुत बार हम कोई लेक्चर सुनते हैं तो हमें कोई फीलिंग ही नहीं होती कि जो हो रहा है होने दो, पापा ने बोला देखना है तो हम देख लेते हैं, पर हमें तो कोई मतलब नहीं है ये देखने में, ये सुनो. सो दैट इज कॉल्ड एपैथी, नो फीलिंग्स, इंडिफरेंट, इम्पैसिव. ठीक है, ओके. द हाई कोर्ट एक्सप्रेस्ड शॉक ओवर द एपैथी ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स होमलेस एंड द पुअर पीपल. भैया उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, सरकार ने उनके ऊपर एपैथी दिखाई, उनके लिए कोई सपोर्ट ही नहीं किया, उनके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं करी, उनको कोई सपोर्ट ही नहीं दिया, डोल भी नहीं दिए उनको, तो भैया एपैथी हो गई. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. चलिए ग्रेट दोस्तों. सिंपैथी, एम्पैथी, ठीक है, एंटीपैथी, ये सब हमें समझ में आना चाहिए. ये सुनो, ये हमने देखा एम्पैथी. दोस्तों ये एंटीपैथी क्या हो सकता है? व्हाट यू मीन बाय एंटीपैथी? ठीक है, एंटीपैथी which is having opposite feelings. कैसी फीलिंग है? अपोजिट. किसी को कांटा चुभा, उसको दर्द हुआ, आपको खुशी हुई, that is called antipathy. I hope it is very clear to everyone. Let's start with the next group of word. The people who are querulous, people who are fastidious, people who are censorious or who grouse at certain things. ठीक है, so grouse करना, this is a verb. Okay, this is to complain about small and trivial thing. फालतू की चीज में कंप्लेन करना है ना, काम की चीजों पे कंप्लेन ही नहीं करना. यस और नो? ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्राउस करना. टू कंप्लेन अबाउट स्मॉल एंड ट्रिवियल थिंग्स. ठीक है, जो लोगों को इरिटेट करती है. बराबर है दोस्तों. मजेदार सी चीज क्या होगी? टू ग्रम्बल, टू ग्राइप, टू वाइन. वाइन करना, उसके बारे में मतलब दुखी होना, है ना. जैसे आपने देखा होगा, है ना, अपने कंसोर्शियम के प्रोफेसर साहब है फैजान मुस्तफ़ा साहब, है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्राउज करते रहते हैं, है ना, कि फ्लैट में लोगों ने उनके बारे में कुछ बोल दिया तो ग्राउज, है ना, वीडियो बनाना चालू कर दिया कि फलाना हुआ, ढिकना हुआ, ये हुआ, वो हुआ. जो सही काम था वो किया ही नहीं उन्होंने. बराबर है, गलत काम करना उन्होंने चालू कर दिया. बराबर है, जो सही काम था कि लोगों की बातों को सही तरीके से सुनो और उसके मुताबिक क्लैट कंसोर्शियम में बदलाव लाओ, वो काम ही नहीं करना है उनको. बराबर है, पता नहीं क्या करना है. एनीवे, क्रीप मारना, मैं भी क्रीप मार रहा हूं उनके लिए. ठीक है, वैसा. टू कार्प, ठीक है, टू कार्प, दैट इज नो वन एंजॉयड हिज परपेचुअली कार्पिंग कंपनी. किसी को उसकी कार्पिंग कंपनी पसंद नहीं आई क्योंकि वो हमेशा उसके बारे में बुराई बोलता रहता है. ये सुनो, ठीक है, वैसा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनके मतलब फैजान मुस्तफ़ा साहब का एग्जाम्पल ले रहा हूँ वापस, जब उनकी वीडियो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटिंग दिखते हैं. ठीक है, लॉ के मतलब लॉ के कवर में, ठीक है, रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटिंग चीज़ें भी बोलने की कोशिश हो जाती है. ठीक है. टू कैविल, दे कैविल्ड एट द कॉस्ट ऑफ फ्राइज एट द बर्गर जॉइंट. ये सुनो, सो उन्होंने क्या करा? दे कैविल्ड, ओके, विच मीन्स दे कंप्लेन्ड, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ फ्राइज एट द बर्गर जॉइंट. ठीक है, मतलब उन्होंने भाई फ्राइज बुरी थी उसके बारे में बोला,
to harp. The headmaster would always harp on about wearing the correct socks. ठीक है, उसके बारे में फोर्स करना कि भैया यही आपको पहन के आना है. Yes or no? So that is to harp on someone, that is to force someone to do something. Okay, the lead actress would grouse about everything on the movie set. सब कुछ मूवी सेट के ऊपर वो कंप्लेन करती रहेगी. दैट इज कॉल्ड ग्राउस. कैरुलस, कंप्लेन करने वाला वापस. ठीक है, पर ये आदमी है. ओके, अ कैरुलस इज अ पर्सन, इट्स अ नाउन. ग्राउस इज अ वर्ब. ग्राउस वाज अ वर्ब. Any, you can say, the querulous person will grouse. Person who complains a lot about small and trivial matter. Yes or no? Carping करना, grouse करना, captious होना. The lead actress had a reputation for being a very, very querulous on the movie set. अब देखिए ना, same sentence है. ठीक है, lead actress would grouse. यहाँ पे verb की तरीके से यूज हुआ. यहाँ पे कैसे यूज हुआ? She had a reputation for being a querulous, being a noun. Yes or no? वैसा उसका वैल्यू है. फास्टिडियस, फजी अबाउट डिटेल्स. फजी वर्ड पे ध्यान देना दोस्तों, ये मजेदार सा वर्ड है फजी, है ना. फजी लॉजिक सुना होगा आपने, है ना. फजी होना या फजी लॉजिक होना. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फजी लॉजिक? फजी लॉजिक का मतलब होना कि लॉजिक में बहुत सारा ट्रूथ हो सकता है, एक ट्रूथ नहीं है, बहुत सारे ट्रूथ है. ठीक है, जब आपको समझ आता है कि बहुत सारे ट्रूथ है, आप उनमें से एक ट्रूथ को पकड़कर बोलेंगे. ये सुनो, ये आजकल के लीडर्स के अंदर बड़ी एक इनसे मजेदार सी आर्ट है. ठीक है, सही चीज तो बोलेंगे नहीं. ठीक है, सही चीज तो बोलेंगे नहीं. ठीक है, तो उनमें से कुछ हाफ ट्रूथ हमें दिखाकर बात करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड फजी लॉजिक के साथ. फजी, फजी होना बहुत ही ज्यादा. फास्टिडियस होना मतलब हेड स्प्लिटिंग होना, मतलब कोने में जाकर उसके बारे में देखना कि अरे क्या सही है क्या नहीं सही है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव हर्ड अबाउट शेल्डन. ये सुनो, शेल्डन कूपर सुना होगा आपने इस बंदे के बारे में. शेल्डन कूपर जब छोटा था तो बहुत ही ज्यादा पंक्टिलियस था, बहुत ही ज्यादा फास्टिडियस था. द ब्राइड वॉज फास्टिडियस अबाउट एवरी डिटेल ऑफ द वेडिंग अरेंजमेंट. शी वॉज वेरी मच हेड स्प्लिटिंग. एक एक छोटी छोटी चीजों पे उसको ध्यान रखना था. फिनिकी होना, फिनिकल होना, डेंटी होना, पंक्टिलियस होना. ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको परफेक्ट चीजें चाहिए. थोड़ी सी भी गलत हो गई तो आपको नहीं चलेगा. दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड विच इज कॉल्ड फास्टिडियस. ठीक है, एंड सेंसोरियस. ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना. सेंसोरियस, दैट मीन्स यू आर सिवियरली क्रिटिकल एंड यू आर फॉल्ट फाइंडिंग. ओके, दैट इज कॉल्ड सेंसोरियस. ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना. एक और वर्ड होता है सेंश्योर. सेंश्योर इज अ वर्ब. ओके, किसी को डांट लगाना. ठीक है, सेंश्योर करना. हाई कोर्ट सेंश्योर द गवर्नमेंट, ऐसा बोल सकते हो. ठीक है, सेंसोरियस होना मतलब एक ऐसा एटीट्यूड होना जो हर चीज में बोलेगा इसमें गलती, इसमें गलती, उसमें गलती. सीवियरली क्रिटिकल ऑफ अदर्स, फॉल्ट फाइंडिंग, हाइपरक्रिटिकल, कंडेमनेटरी, कास्टिगेटरी, डिनेंशिएटरी, डेप्रिकेटरी. किसी के बारे में बुरा बोलना, है ना, उसको नीचा दिखाना, उसको सही तरीके से नहीं बताना. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंसोरियस. वाले उसका अपोजिट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री, अप्रूविंग. ठीक है, ऐसे वर्ड बनेंगे. आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ दिस वर्ड्स. वेरी गुड. ठीक है, तो क्या क्या वर्ड देखे? ग्राउस, कैरुलस, फास्टिडियस, सेंसोरियस. ग्राउस वॉज अ वर्ब, while querulous was a noun. Fastidious is adjective. ठीक है, censorious is an adjective. Yes or no? I hope you are able to understand this. कैसे लोग हैं ये लोग? ये कंप्लेन करने वाले लोग हैं. ग्राउस करना, किसी के बारे में छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्लेन करना. कैरुलस, झगड़ते रहना, छोटी चीज के लिए भी, ट्रिवियल चीजों के बारे में भी हल्ला करते रहना. फास्टिडियस मतलब बहुत ही परफेक्ट चीजें चाहिए, अगर परफेक्ट नहीं होगा तो आप चिल्लाओगे, आप ग्राउस करोगे. सेंसोरियस, ठीक है, आप हर बंदे के एक्टिविटी में छोटी छोटी चीजों में कंप्लेन करोगे. दैट इज कॉल्ड सेंसोरियस. यस और नो? नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर पेट्यूलेंट, कैंटेंकरस एंड बेलिजरेंट. आपको याद होगा, इन अ सेकेंड सेशन आई डिस्कस्ड अबाउट बेलिजरेंट वर्ड. द रूट वर्ड वाज बेलम. बेलम मीन्स वॉर, और वहां से हमने वर्ड देखा था बेलिजरेंट. हमने एक और वर्ड देखा था बेलिकोस,
बेलिकोसिटी, हमने वर्ड देखा था बेलिकोसिटी, ठीक है, बेलिकोसिटी एंड बेलीगर्ड. Okay, what do you mean by beleaguered? Beleaguered is someone who is troubled by the war. Bellicosity and bellicose are the very, you can say, vibrant and very aggressive kind of people. Okay, so bellicose is a situation, bellicosity is a situation, ठीक है, which is war-like situation, and beleaguered is troubled by the war. So petulant is someone who is bad-tempered. कैसा बंदा है? बैड टेम्पर्ड. फोटोग्राफ देखो ना कितना क्यूट है ना, बैड टेम्पर्ड भी क्यूट दिखता है. ओके, सो द पेरेंट्स वर टायर्ड, सॉरी नॉट ट्राइड, वर टायर्ड ऑफ द टेंट्रम्स ऑफ द स्पॉइल्ड पेट्यूलेंट टीन व्हेन यू आर बीइंग ट्रीटेड एज, मतलब समवन, अगर कोई आपको बोले यू आर पेट्यूलेंट तो आपको समझना चाहिए कि आपके बारे में कुछ बुरा बोला है. ठीक है. इरेसिबल एक और वर्ड है दोस्तों, इरेसिबल. ओके, ठीक है. सो हिज बॉस वॉज एन इरेसिबल ओल्ड मैन एंड वेरी डिफरेंट पर्सन टू वर्क विथ. मतलब ऐसा बंदा जो हर छोटी छोटी चीज में इरिटेट हो जाएगा, ऐसे बंदे को बोला जाएगा इरेसिबल. ग्रम्पी, ग्राउची, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं. टेम्परामेंटल बोल सकते हैं. टेस्टी बोल सकते हैं. टेस्टी का स्पेलिंग ध्यान देना. स्नैपी बोलेंगे, स्नैपी. ओके, ठीक है. उसका यू कैन से जो अपोजिट वर्ड अगर आप देखोगे तो उसका ये मतलब होगा जो बंदा बहुत ही ज़्यादा यू कैन से एपैथेटिक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक बंदा है, ऐसे आप बात कर सकते हो. ओके, सो ये मज़ेदार से वर्ड है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना. ये सब पीडीएफ है ना, ये पूरी पीडीएफ आपको प्रोटैलेंट की साइट से मिलती है भैया. ये सुनो, कहाँ से मिलेगी? courses.protalentdigital.com, फ्री में मिलती है. बिल्कुल दे लीजिए दोस्तों, हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बड़ा फायदा होगा. ये सुनो, ग्रेट. कैंटेंकरस होना, कोई बंदा अनकोऑपरेटिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, ये सुनो, ठीक है, कर्मजियन है, ये सुनो, कोलेरिक है. द चिल्ड्रन कॉल्ड कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी प्रेसिडेंट एज अ कैंटेंकरस ओल्ड फॉजिल. मतलब बच्चों के साथ वो जो बंदा है वो लड़ाइयाँ करता रहता है. ये सुनो, हर बार अनकोऑपरेटिव है, उनको खेलना है, खेलने नहीं देता है. ये सुनो, तो ऐसी जब परेशानी होती है उनको कैंटेंकरस बोला जाता है. बेलिजरेंट इज वेरी हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव. ओके, एवरीवन केम इनटू द मीटिंग एक्सट्रीमली बेलिजरेंट. बेलिजरेंट का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ज्यादा लड़ाई करने वाले. ये सुनो, सो पेट्यूलेंट, कैंटेंकरस और बेलिजरेंट are the group of words which are going to be very useful to you. ये सुनो, पेट्यूलेंट कौन होगा? जो बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाता है. बेलिजरेंट इज वेरी एग्रेसिव, लड़ने के लिए तैयार. और कैंटेंकरस इज ऑल्सो समवन इज कॉल्ड अनकोऑपरेटिव. पेट्यूलेंट वो जो एक से गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, टीन्स के लिए जनरली यूज होता है. कैंटेंकरस जनरली ओल्ड पर्सन के लिए, क्योंकि वो अनकोऑपरेटिव होते हैं. क्लियर है? इज दैट वेरी कंफर्टेबल? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. फ्यूम, गुस्सा होना, रैथ है ना, भगवान का कहर मच गया, भगवान का गुस्सा है ना, द रैथ ऑफ गॉड. ऐसा आपने सुना होगा ना, वो कहीं ना कहीं कोई एक से जो आपका एडवेंचर साइट्स होगी वहां पे आपको रैथ ऑफ गॉड मिला होगा. रेज, डेजियन, ग्लेयर, स्क्राउल. फ्यूम, फ्यूम होना, विजिबली दिखता है, ठीक है, टू बी विजिबली वेरी एंग्री, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्यूम. ओके, सिमिलर वर्ड तो देखिए ना, इन्फ्यूरिएट. द फॉल्स चार्जेस इन्फ्यूरिएटेड हिम, उसके ऊपर झूठे झूठे चार्जेस लगाए गए तो वो गुस्सा हो गया. ये सुनो, इंसेंस, ही वाज इंसेंस्ड एट एवरीवन बीइंग लेट. जो भी लेट आया उसके ऊपर वो इंसेंस, बहुत ही गुस्सा हो गया. ये सुनो, सो उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा फ्यूम का? फ्यूमिंग, आइरेट, लिविड. लिविड मजेदार सा वर्ड है, लिविड, ध्यान रखना, लिविड. He was livid at not being invited. He was furious. गुस्सा आ गया कि भाई मुझे बुलाया क्यों नहीं. फ्यूरियस हो जाना, इन्फ्यूरिएट हो जाना, इंसेंस्ड हो जाना, एनरेज, सीथिंग. एपोप्लेक्टिक काम का वर्ड है, एपोप्लेक्टिक, एपोप्लेक्टिक, ठीक है, एपोप्लेक्टिक. CEO would become apoplectic
एट द मियर मेंशन ऑफ द राइवल कंपनीज नेम, जब राइवल कंपनी का नाम बोल दिया बहुत गुस्सा हो गया वो आदमी, ये सुनो, सो ही बिकेम एपोप्लेक्टिक। ध्यान रखना, एपोलॉजी नहीं है, एपोप्लेक्टिक है, काम का वर्ड है, ओके, ध्यान रखना। ही वॉज फ्यूमिंग व्हेन हिज ड्राइवर बैंग्ड अप हिज न्यू कार, नई नई गाड़ी को ठोक दिया, तो ही बिकेम फ्यूमिंग, गुस्सा हो गया। समझ आया दोस्तों? फ्यूम होना, विजिबली एंग्री होना, सीथिंग, सीथिंग विथ एंगर, आग बबूला होना, ठीक है, दैट इज सीथिंग विथ एंगर, इंसेंस, इन्फ्यूरिएट होना, आइरेट, लिविड, है ना, एपोप्लेक्टिक, सभी वर्ड समझ आए होंगे। सब वर्ड के थोड़े थोड़े अलग अलग मतलब है, ठीक है, ध्यान रखना। कोई भी वर्ड इधर उधर मत यूज कर देना, पर शब्दों के ऊपर ध्यान देना। इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू, बिलीव मी। ये जो वर्ड मैं आपके साथ करवा रहा हूं, इनमें से एक भी वर्ड अगर एग्जाम के अंदर एक भी वर्ड इसके बाहर आ जाए तो भैया परेशानी है, नहीं आने वाला है। सब कुछ इसी में से कवर होगा, तैयारी रखिएगा, ध्यान रखिएगा। रैथ, ठीक है, फियर्स एन एक्सट्रीम एंगर, ठीक है, ही फियर्ड हिज फादर्स रैथ बिकॉज ही wrecked द फैमिली कार। अब भैया घर की गाड़ी तोड़ दोगे तो पापा का गुस्से का तो सामना करना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड रैथ। ये सुनो, रेज शब्द अलग है भैया, रेज, violent and uncontrollable anger, that is called rage. There has been a rise in the incidents of road rage. When you hear road rage, उसका क्या मतलब है? रास्ते में लोगों को गुस्सा आ गया, ये सुनो, एक दूसरे को मारने लगे। अभी आपने देखा होगा एक वायरल वीडियो हुआ था, एक लड़की ने एक ड्राइवर को बहुत मार रही थी, चांटे पे चांटे मार रही थी, ठीक है भैया, लड़की हुआ, उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि भैया लोगों को मारेंगे, ठीक है, कि वो लड़का सही था, बेचारे ने सामने एक भी बार हाथ नहीं उठाया। ये सुनो, वो लड़के ने अच्छा किया, पर जब लड़का हाथ नहीं उठाया उसका ये मतलब थोड़ी है कि लड़की उसको मारती रहेगी, बिल्कुल गलत बात है। वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल एंगर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेज। ये सुनो, उसके ऊपर से वर्ड निकला एनरेज्ड, ही वॉज एनरेज्ड बाय, यू कैन से द पर्टिकुलर वर्ड्स, उसको कुछ वर्ड्स ऐसे बोले ताकि वो गुस्सा हो गया, दैट इज कॉल्ड एनरेज्ड। ये सुनो, सिनोनिम क्या होगा? द फ्यूरी ऑफ द गॉड, wrath ऑफ द गॉड, ऐसा भी बोल सकते हो, फ्यूरी ऑफ द इविल मॉर्टल्स, ओके, फ्यूरी से वर्ड निकलता है फ्यूरियस और इन्फ्यूरिएटेड। डजियन, मजेदार सा वर्ड है, डजियन, क्या बोलेंगे? डजियन, ओके, फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज ऑफ बीइंग ऑफेंडेड, दैट इज कॉल्ड डजियन, ओके। दे लेफ्ट इन हाई डजियन बिकॉज of a glare mistreatment by the host of the party. होस्ट ऑफ द पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, वो उनको बुलाया पर उनके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दिया, उनको मिसट्रीटमेंट किया, तो ऑब्वियसली वो लोग गुस्से में निकल गए। दे लेफ्ट इन द हाइड्रोजियन, दे हैव अ फीलिंग ऑफ एंगर इन देयर माइंड। ये सुनो भैया, ऐसा भी हो जाता है, फील ऑफ डजियन। ये सुनो, क्या होता है जब आप किसी के रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, सो दैट इज कॉल्ड डजियन। याद रहेगा वर्ड, मजेदार सा वर्ड है डजियन। ये सुनो, ग्लेयर, स्टेयर एंग्रीली, मजेदार सा भाई साहब, है ना, ये त्रिपाठी साहब देखते हैं तो मजेदार सा लगता है, यार मस्त गुस्से से देखा, ठीक है। द वाइफ ग्लेड एट द हस्बैंड फॉर बीइंग लेट फॉर द एनिवर्सरी डिनर। ये सुनो, ठीक है, तो यार ये भाई साहब का यही लुक है, और ये लुक के लिए तो वो कैसे काफ़ी माने जाते हैं। मिर्ज़ापुर में शायद इसी लुक की वजह से उनको लिया था, नहीं तो क्यों लेते भैया। उनका ग्लेयर करना मज़ेदार है, स्काउल करना, स्काउल इज एन एंग्री एक्सप्रेशन। ही वॉक आउट ऑफ द यूजलेस मीटिंग विद स्काउल ऑन द फेस, ऐसा करके निकल जाना, है ना, दैट इज कॉल्ड स्काउल, ओके। एक और सिनोनिम होता है उसका, ग्लाउलर, है ना, क्या बोलेंगे? ग्लावर, The angry manager had a glower on his face as his team missed deadline. Frown करना, the teacher had frowned on his face because all his students failed. ये सुनो, scowl. So वापस समझते हैं, सभी गुस्से के साथ है पर सभी का मतलब सेम नहीं है। फ्यूम, अंदर से आग बबूला होना, फ्यूमिंग विथ एंगर, ऐसे वर्ड बोल सकते हैं। रैथ, रैथ का लेवल बड़ा है भाई। रैथ किसके लिए यूज होता है? रैथ वर्ड यूज होता है कि जो कोई बंदा अथॉरिटी में बड़ी पोजीशन पे है ना भाई, उनका अगर मतलब ऐसा गुस्सा हुआ तो तहस नहस कर देंगे, हम उनके सब्जेक्ट है, हम उनके अंडर में होते हैं, हमारे पे गुस्सा हुए तो हमारी हालत खराब हो गई। सो दैट इज रैथ ऑफ गॉड बोल सकते हैं, रैथ ऑफ पापा बोल सकते हैं, वैसा
रेज, है ना, रेज मतलब गुस्सा होना, रोड रेज वाला, ये सुनो, रोड वाला रेज मतलब किसी को देखा और बिल्कुल गुस्सा आ गया, मारने की इच्छा हो गई, दैट इज कॉल्ड रोड रेज. डजियन वॉज अ न्यू वर्ड पॉसिबली फॉर मेनी ऑफ यू. ये सुनो, डजियन वर्ड हमने देखा, अभी क्या देखा था डजियन के बारे में? डजियन के बारे में हमने देखा था कि भाई एक ऐसा मतलब कि आपके मन में एक फीलिंग आई एंगर की, ठीक है, यू लेफ्ट विथ अ डजियन, ठीक है, ऑन योर फेस, ठीक है, और यू लेफ्ट इन अ हाई डजियन, ठीक है, दैट मीन्स एक एंगर की फीलिंग के द्वारा आप बाहर निकले. ये सुनो, फिर ग्लेयर करना किसी के ऊपर, ठीक है, गुस्से से देखना, द ग्लेरिंग मिस ट्रीटमेंट, द ग्लेरिंग, you can say the indifference by consortium, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं. द ग्लेरिंग के बारे में बात हो रही है. स्काउल करना, मुंह के ऊपर वो वाला एक्सप्रेशन होना. आई होप दिस इज कंफर्टेबल फॉर यू. समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए, वेरी गुड. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल. दिस मस्ट बी फन, दिस मस्ट बी एंजॉइंग फॉर यू. बिल्कुल उसको ध्यान से पढ़िएगा. इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू. कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रुप में बनाए गए आपके लिए, तो आप उसको जल्दी से याद रख पाएंगे. ओके, चलिए, ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. अगर ये वीडियो पसंद आता है, इसको लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टेल टू एटलीस्ट 10 to 15 ऑफ योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन प्रो टैलेंट का चैनल. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.